Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. And our today's first sum is exercise 8.2 11th sum. Prove that the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. That means हमें क्या प्रूफ करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n, हमारे पास दो एक्सपांशन दिया है. ओके, दोनों के दोनों एक्सपांशन में हमें x रेज़ टू n के कोएफिशिएंट पर फोकस करना है. ओके, और कौन सा वाला कौन से वाले से ट्वाइस है? जो हमारा 1 प्लस एक्स रेज़ टू 2n वाला, जो उसके अंदर का जो हमारा x रेज़ टू n होगा टर्म, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो ट्वाइस किसके साथ? तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू 2n माइनस 1 के अंदर जो हमारा x रेज़ टू n वाला टर्म होगा उसके साथ. ओके, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n in 1 plus x raised to 2n is twice of x raised to n of coefficient of 1 plus x raised to 2n minus 1. चलो कैसे प्रूफ करते हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एक्सपांशन है 1 plus x raised to 2n, उसका हम कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, चलो हियर आंसर में हियर 1 plus x raised to 2n be given, in which the value of small a is equals to 1, the value of small b which is equals to x, and the value of small n which is twice n. And we know that the general form of binomial theorem, which is tr plus 1 is equals to ncr, a raised to n minus r, and obviously b raised to r. Put all these three values in our general form, we get tr plus 1 is equals to twice n cr, 1 raised to n minus 1, we get 1, so we don't write here, and similarly x raised to r, and give it now this is the general form of our 1 plus x raised to 2n. That means our expansion 1 plus x raised to 2n's general form. Now we have to find the coefficient of x raised to n. That means we have to put in this form r is equals to n. समझ में आ रहा है? ये जो हमारा जनरल फॉर्म आया है उसमें हम r is equal to क्या पुट करेंगे? n पुट करेंगे. ओके, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? x is to n मिलेगा, और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x is to n. नाउ the coefficient of x raised to n is equals to क्या मिलेगा हमें? सो यहाँ पे x raised to n और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा? 2nc, r के रिप्लेस में n आ जाएगा, सो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वी गेट 2ncn. ओके, नाउ apply our combinations formula. We get 2n factorial divided by n factorial, and obviously 2n minus n factorial, so finally we get 2n factorial divided by n factorial into n factorial, and give it result number capital A. Okay, so by using our first expansion we get this kind of coefficient of x is to n and give it result number capital. Now we use our second expansion that we have given in our question, and also 1 plus x raised to 2n minus 1 be given. So the value of a is equals to 1, value of b is equals to x, and obviously value of small n is equals to twice n minus 1. Here we also know that the general form of binomial theorem, which is tr plus 1 is equals to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. Put all these three values in this general form, we get tr plus 1 is equals to 2n minus 1 cr, a raised to, that means 1 raised to n minus r, that means we get 1, so we don't write here, and obviously x raised to r. Okay, now the coefficient of x raised to n is equals to
we just put the value of small r is equals to n. In this general form we get x is to n here, and obviously the value of n here. So the term which multiply by x raised to n, which we get the coefficient of x is to n, we get 2n minus 1 cn. Now apply our combinations formula. We may write 2n minus 1 factorial whole divided by n factorial, and obviously 2n minus 1 minus n factorial. So finally we get 2n minus 1 factorial divided by n factorial and 2n minus n, that means n minus 1 factorial. So this kind of form we get. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना. मैं 2n के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और ले भी लेता हूँ, बराबर. मतलब क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2n के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ. सो वी गेट दिस काइंड ऑफ फॉर्म. ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आगे दो है ना डिनोमिनेटर में, उसको मैं आगे ले लूंगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल और n को दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. और सिमिलरली न्यूमरेटर में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल और 2n दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो मुझे कैसा फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n एंड होल डिवाइड बाई 2 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n इंटू n. समझ में आया? चलो अभी ये करने का रीजन क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. चलो आपको तो पता ही होगा कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट 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 n लिख सकते हैं. सिमिलरली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n. ओके, तो ये जो फॉर्म मिला उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सो 1 टू n माइनस 1 तक और n को मैं डिफरेंट लूंगा. तो इसको मुझे फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n लिख सकता हूँ. ओके चलो, तो आपको ऐसा फॉर्म कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है. जस्ट डिफरेंस क्या है कि हमारे पास n का मैंने समझा है और हमारे पास है 2n है. ओके, तो इसके इक्वल्स हमारे क्या n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल्स हम 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं. समझ में आया? ओके, सो इसके इक्वल्स हम 2n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बराबर ना. यहाँ पे जो मैंने आपको समझा है अकॉर्डिंग. चलो, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, n फैक्टोरियल तो है और इसका भी सेम एज हमारा क्या आएगा आंसर, n फैक्टोरियल ही आएगा. चलो इसको मैं रिजल्ट नंबर कैपिटल b दे देता हूँ और एक काम करता हूँ, इज इक्वल्स टू ये हाफ को मैं सेपरेट कर देता हूँ. तो हाफ इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल दिख रहा है आपको. ओके, देयरफॉर फ्रॉम a and b it is clear that, what is clear that 1 plus x raised to 2n minus 1, the coefficient of 1 plus x raised to 2n minus 1, उसका आंसर क्या मिला मुझे, तो हाफ इंटू ये मिला और ये क्या है हमारा, बराबर. ये आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व किया होगा कि किसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n इन द एक्सपेंशन 1 plus x रेज़ टू 2n. द कोएफिशिएंट ऑफ 1 plus coefficient of x raised to in x raised to n in 1 plus x raised to 2n. समझ में आ गया, बराबर ना. तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in 1 plus x raised to 2n is equals to 2 into क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in 1 plus x raised to 2n minus 1. क्या प्रूफ करना था, यही ना. समझ में आ गया, हेंस द प्रूफ. ओके, तो इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो.
Find small n, exercise 8, eighth sum. Find small n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 raised to n is root 6 रेशियो 1. हमें फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब ये जो n रेज टू है ना पावर है वो हमें फाइंड आउट करनी है. और हमें क्या दिया है कि जो एक्सपांसन है ओके उसका बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म उसका हमें रेशियो दिया है रूट 6 रेशियो 1. इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड आवर वैल्यू ऑफ स्मॉल n. सो लेट सी आंसर हियर. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म क्या आता है, बराबर ना. ओके मतलब स्टार्टिंग से हमारा फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, मतलब हमें T5 फाइंड आउट करना है ना. एंडिंग से भी T5 और स्टार्टिंग से भी T5 फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से T5 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम एंड की बात करते हैं. सो हियर फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ T3 होल रेज टू n इज इक्वल्स टू, अभी ये मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, मतलब फोर्थ रूट निकाल देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू 1/4 लिख सकता हूँ. एंड सिमिलरली 3 रेज टू माइनस 1/4, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 रेज टू 1/4 होगा इसलिए. एंड रेज टू n बी गिवन. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 1/4, value of b is equals to 3 raised to minus 1/4. Now we know that the general formula PR plus 1 is equals to NCR a raised to n minus r b raised to r. Put these two values in this general form, we get TR plus 1 is equals to NCR 2 raised to 1/4 raised to n minus r, and obviously 3 raised to minus 1/4 raised to r. Okay, modify this form, we get NCR 2 raised to n minus r by 4 and 3 raised to minus r by 4, रिजल्ट नंबर कैपिटल A. सो आप देख सकते हैं अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है फ्रॉम बिगिनिंग. दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4. Because in a fifth term the value of small r is 4. So now to find fifth term, put r is equals to 4 in capital A. We get capital A implies T4 plus 1 is equals to NC4 2 raised to n minus 4/4 3 raised to minus 1. So finally we get T5 is equals to NC4 2 raised to n minus 4/4 and by 3. So this is your fifth term from beginning. Now we have to find the fifth term from ending. तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना. तो इसको हम प्रॉपरली लिख देते हैं. therefore फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग is equals to, we get NC4 2 raised to n minus 4/4 and divided by 3. Give it result number star. Okay, चलो now we have to find the fifth term from the ending. So इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे स्टूडेंट्स, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. ओके अब हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फाइंड आउट किया. ओके गॉट इट, दिमाग में घुसा. ओके तो हमने क्या किया, जो ए वैल्यू है द वैल्यू ऑफ ए वी टेक 4 रूट 2 दैट मीन्स 2 raised to 1/4 एंड वी टेक बी वैल्यू 3 raised to minus 1/4. अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज में चेंज कर दूंगा. दैट मीन्स जो वैल्यू ए है उसको मैं बी सिलेक्ट कर लूंगा और बी को ए सिलेक्ट कर लूंगा. मतलब हमने अभी ऐसा वैल्यू लिया था ना, यहाँ से लिया था. अब मैं क्या रखूंगा, इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, मतलब हमें यहाँ से वैल्यू लेनी है तो हम पीछे से वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी, सो 3 raised to minus 1/4 ही आएगी एंड बी की वैल्यू 2 raised to 1/4 आएगी.
समझ में आ रहा है? हमने स्टार्टिंग से जब वैल्यूज लिया तो जो एज इट इज था ए वैल्यू है, जो ए की वैल्यू वो ए ही है और बी की वैल्यू बी ही है। अब मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर लेता हूँ, मतलब जो फॉर्म है उसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, घुमा देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। तो जो आपकी ए वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, और बी की वैल्यू आगे आ जाएगी। ओके, और क्या चाहिए हमें, यही चाहिए ना, समझ में आ गया? सो अब क्या करता हूँ, वैल्यूज को इधर उधर कर लेता हूँ। ओके, तो जो अभी यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेट हो जाएगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएगी। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सो नाउ 3h2 for 3h2 minus 1 by 4 plus 2 raised to 1 by 4, we have value of a is equals to 3 raised to minus 1 by 4 and b is equals to 2 raised to 1 by 4. Okay, and the value of small n, which is obviously small n. Okay, now we apply our general form. That means we know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r and obviously b raised to r. Okay, so now put these two values in our general form. We get tr plus 1 is equals to ncr, obviously the value of small a, जो मैंने बोला कि हमारा जो इंटरचेंज हो गया है उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है हमारा आएगा, 3 raised to minus 1 by 4 and obviously raised to n minus r, and the value of b, that means 2 raised to 1 by 4 raised to r. Okay, modify this form, we get tr plus 1 is equals to ncr 3 raised to, अभी क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस है ओके उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब किसके साथ, तो हमें माइनस इंटू ब्रैकेट n माइनस आर डिवाइड बाई 4 मिलेगा। सो माइनस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस वो प्लस हो जाएगा। सो वी गेट r minus n by 4 and 2 raised to r by 4. So give it result number capital B. Okay, now we have to find the fifth term from end. Okay, so we take r is equal to 4. In this result we get, now to get or to find fifth term from end, put r is equals to 4 in result capital B. We get B implies t4 plus 1 is equals to nc4 3 raised to 4 minus n by 4 and 2 raised to 1, because 4 by 4 both are cancel, we get 1. So that implies t5 is equals to nc4 3 raised to 4 minus n by 4 and into 2, result number डबल स्टार। बट इसको हम नहीं देंगे, हम किसको देंगे, therefore फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड is equals to nc4 3 raised to 4 minus n by 4 into 2, give it result number double star. Okay, now we use our information which we have given in our question. Okay, उसको हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। क्या था हमारा, the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion is √6:1. ओके, तो इसका हम यूज करेंगे। नाउ it is given that fifth term from beginning divide by fifth term from end is equals to √6/1. So put star and double star, the result star and double star in this equation. We get nc4 2 raised to n minus 4 by 4 divided by 3 and whole divided by nc4 3 raised to 4 minus n
बाई 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू √6/1। चलो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 है उसको डिनोमिनेटर में लेता हूँ, 2 को न्यूमरेटर में लेता हूँ। सो वी गेट 2⁻n−4/4 इंटू 2⁻−1 डिवाइड बाई 3⁻4−n/4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू √6/1। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बेस सेम है, इंडाइसिस का एडिशन कर लेता हूँ। वी गेट 2⁻n−4/4 माइनस क्या मिलेगा मुझे, चलो तो अभी हम रेस टू -1 हो जाएगा और डिनोमीटर में +1 हो जाएगा। ओके चलो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो हमें n-8/4 और यहाँ पे 8-n/4 मिलेगा इज इक्वल टू √6। अभी डिनोमीटर में जो 3⁻2 है उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 3⁻2 जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, सो वी गेट n-8/4 एंड वी नो दैट अवर वन रूल दैट मीन्स ए बी रेस टू एन होगा तो a रेस टू एन बी रेस टू एन, दैट मीन्स जो पावर है वो हम इंडिविजुअली दे सकते हैं। ओके अगर हम दे सकते हैं तो हम ले भी सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पे जो पावर दिया वो ले लेते हैं। सो वी गेट 2 इंटू 3 रेस टू n-8/4 इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इम्प्लाइज 6n-8/4 इज इक्वल्स टू 6/2। कंपेयर बोथ साइड्स indices we get n-8/4 is equals to half। क्यों मैंने कंपेयर किया, क्योंकि दोनों के बेस सेम है इसलिए। 2 2s are 4 that implies n-8 is equals to 2 so that implies n is equals to 10। क्या यही फाइंड आउट करना था ना, समझ में आ गया। ओके सॉल्यूशन एक बार देख लो। टेक द पावर ऑफ x इज 0। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इंडिपेंडेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, पावर ऑफ x दैट मीन्स x जो भी होगा बराबर उसके इक्वल्स हमें 0 पुट करना है। कैसे करना है तो उसका मैं एक बार शांति से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने जो जनरल टर्म देखा था बराबर ना, मतलब हमने आगे जो हमने 5th टर्म फाइंड आउट किया, 6th टर्म फाइंड आउट किया बराबर ना, तो ऐसे टर्म्स हमने फाइंड आउट किए बराबर ना। तो तब हमने क्या किया था कि हमने हमारे पास जो भी एक्सपांसन था बराबर उसमें हमने ए बी की वैल्यू सेपरेट की, उसके बाद उसको हमने जनरल फॉर्म में क्या किया, पुट किया, कैलकुलेशन किया, और उसके बाद हमारा जो भी फॉर्मूला में बराबर TR+1 वाला उसमें हमने क्या किया था कि सपोज हमने कोई कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना था बराबर ना, कोई भी कोएफिशिएंट, तो हम क्या करते थे x जो भी समथिंग हमें क्वेश्चन में दिया गया था तो उसको जो हमारा जनरल फॉर्म आता था उसमें जो x जो था बराबर उसमें x जो पावर था उसको हम कंपेयर करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें पुट कर देते थे। और कोई टर्म या 6th टर्म बराबर तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्म आता था उसमें जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना था तो आर की वैल्यू हमें एक प्लेस ले लेते थे और वो हम उसमें पुट कर देते। बस यहाँ पे भी वही करना है, जस्ट डिफरेंस इतना है कि हमें TR+1 मतलब जो रिजल्ट कैपिटल है हम फाइंड आउट करते हैं वो तो हमें करना ही है बराबर, और उसके अलावा एडिशन में हमें क्या करना है, जो x जो भी पावर होगा उसके इक्वल हमें 0 ले लेना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके और वो वैल्यू हमें उसमें जस्ट पुट कर देनी है। सो स्टार्ट करते हैं। चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांसन ऑफ cube root x plus 1/2 into cube root x raised to 18 where x greater than 0. Okay, so let's see answer. Here cube root x plus 1/2 into cube root x whole raised to 18 be given. Therefore the value of a is equals to cube root x, the value of small b is equals to 1/2 into cube root x, and the value of small n is equals to 18. So we know that the general form of our binomial theorem, which is TR+1 is equals to NCR a raised to n minus r and b raised to r. Okay, now put all these three values in our general form. We get TR+1 is equals to 18CR cube root x raised to 18 minus r 1/2 into
क्यूब रूट एक्स रेज टू आर। ओके, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो वी गेट 18CR एक्स रेज टू 1/3 होल रेज टू 18 माइनस आर, क्योंकि क्यूब रूट को हम जो क्यूब रूट है उसको हम क्यूब रूट निकाल के हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 1/3 लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे 1/2 रेज टू आर एंड इन टू 1 x raised to 1/3 whole raised to r. Okay, so that equals to 18CR x raised to 18 minus r by 3, 2 raised to minus r and x raised to minus r by 3. Okay, so बेस सेम है, इंडेक्सेस का एडिशन, पावर का जो एडिशन हो जाएगा, we get 18CR 2 raised to minus r and x raised to 18 minus r by 3 minus r by 3. डिनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। सो वी गेट 18CR 2 raised to minus r x raised to 18 minus 2r by 3. गिव इट रिजल्ट नंबर कैपिटल है। दिस इज योर जनरल फॉर्म। पुट नाउ टू फाइंड independent term in capital A, take 18 minus 2r by 3 is equals to 0। जैसा कि मैंने आपको रिमार्क में बोला था कि हमारा जो x का पावर होगा, बराबर, x रेस टू जो भी होगा उसके इक्वल हमें क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। तो हमारे पास x का रेस टू x का जो पावर है उसका क्या है, वैल्यू 18 minus 2r by 3 है, उसके इक्वल्स हम 0 ले लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ स्मॉल r। सो वी गेट 18 इज इक्वल्स टू 2r एंड फाइनली r इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब हमारा कौन सा टर्म होगा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, r+1, दैट मीन्स 9+1, सो वी गेट 10। मतलब हमारा जो 10th टर्म है वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। इसको हम कैपिटल ए में पुट कर देते हैं। सो कैपिटल ए इम्प्लाइज t 9+1 इज इक्वल्स टू 18C9 2 raised to minus 9 and x is to obviously 0, so that implies t10 is equals to 18C9 and divide by 2 raised to 9। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपका आंसर यही होगा। ओके, सो समझ में आ गया इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, एक बार इसका सॉल्यूशन देख ले। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 3/2x minus 1/3x raised to 6. Same as previous, here 3/2 into x minus 1/3x whole raised to 6 b और इज इक्वल्स टू, एक स्टेप हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 3/2x प्लस इन अ ब्रैकेट minus 1/3x raised to 6 b given, so the value of a is equals to 3x/2, b is equals to minus 1/3x, and of course the value of n is equals to 6. We know that tr plus 1 is equals to ncr a raised to n minus r b raised to r, so that implies tr plus 1 is equals to 6cr 3x/2 raised to n minus r minus 1/3x whole raised to r। चलो, सभी जितने भी टर्म्स, जितने भी हमारे पास वैल्यूज है, सभी को पावर इंडिविजुअली दे देते हैं। सो वी गेट tr plus 1 is equals to 6cr 3 raised to n minus r x raised to n minus r divided by 2 raised to n minus r minus 1 raised to r divided by 3 raised to r x raised to r। जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। सो दैट इम्प्लाइज tr plus 1 is equal to 6cr 3 raised to n minus r x raised to n minus r 2 raised to r minus n, समझ में आ गया होगा, minus 1 raised to r 3 raised to minus r x raised to minus r। जिसके भी बेस सेम है, ओके, उसके पावर क्या कर लेते हैं, एडिशन कर देते हैं। सो यहाँ पे 3 raised to कितना होगा,
n minus 2r, 2 raised to r minus n, minus 1 raised to r, and x raised to n minus 2r. Okay. ओह सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमें 2n x रेज टू 2n माइनस 6, तो सो x रेज टू 12 माइनस 2r, ट्वेल्व माइनस 3r मिलेगा हमें यहाँ पे, बराबर। थोड़ा इतना जरा मॉडिफाई कर देना स्टूडेंट्स, इतना थोड़ा मॉडिफाई कर देना। सो दिस इज योर रिजल्ट कैपिटल ए। नाउ to find independent term in capital A, take 12 minus 3r is equals to 0, that implies r is equals to 4. So capital A implies t 4 plus 1 is equals to 6c4, 3 रेज टू, यहाँ पे कितना n की वैल्यू मेरे पास 6 है, यहाँ पे 6 और कहीं पे है, यहाँ पे 6 ओके। सो 6 माइनस 8, 2 रेज टू, r की वैल्यू 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 2 minus 1 raised to 4, that means 1, and x raised to 0. So that implies t phi is equals to 6 factorial divided by 4 factorial, 2 factorial, 3 raised to minus 2, 2 raised to minus 2, and we have 1. So that implies t phi is equals to 4 factorial into 5 into 6 divided by 4 factorial into 1 into 2 into 1 by 3 into 3 into 1 by 2 into 2. So 4 factorial cancel and 3 to the 6. So that implies t phi is equals to 5 3 is 15 divided by 3 3 is 9, 3 is 9 2 is, और एक 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमें फाइनली कितना मिलेगा, 5 बाई 3 टू ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, सो t15 हमें t5 हमें मिलेगा, 5 बाई 12 हमें मिलेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करना था, वो स्टूडेंट्स थोड़ा कर लेना, बराबर। हमने n की वैल्यू यहाँ पे पुट करना भूल गए, n माइनस आर के जगह 6 माइनस आर के जगह n माइनस आर लिखना था। सो यहाँ पे 6 माइनस आर, 12 माइनस 2 आर, 6 माइनस आर, ओके। जस्ट इतना थोड़ा मॉडिफाई कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 17, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th and 2r minus 1th terms in the expansion of 1 plus x raised to 34 are equal, find small r. So answer, here 1 plus x raised to 34 be given. So value of a is equals to 1, value of b is equals to x, and the value of small r is equals to 34. We know that, what we know that the general form tr plus 1 is equals to ncr, a raised to n minus r, b raised to r. So that implies tr plus 1 is equals to 34 cr, 1 raised to लिखेंगे नहीं, x raised to r. So result number capital A. Now from it is given that
क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, r माइनस 5th टर्म इज इक्वल्स टू ओके कोएफिशिएंट ऑफ r minus 5th term is equals to coefficient of 2r minus 1th term. ओके सो r माइनस 5th टर्म बराबर ना, तो r माइनस 5th टर्म है तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे रेज टू r है ना, तो r की वैल्यू हमें इसमें से क्या मिलेगा, r माइनस 1 कम r माइनस 6 हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको समझा देता हूँ। चलो tr प्लस 1 के साथ हम कंपेयर करेंगे किसको, r माइनस 5 को। तो चलो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 1 हमें लिखना होगा यहाँ पे, तो प्लस 1 हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r माइनस 6 प्लस 1 लिखेंगे बराबर, क्योंकि माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स वी गेट r माइनस 5। सो r के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, r माइनस 6 दिख रहा है और 1 के प्लेस में तो 1 है ही। और सिमिलरली हमारे पास 2r माइनस 1 है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, सो 2r माइनस 2 प्लस 1, सो 2r माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। सो r के प्लेस में आपको क्या दिख रहा है, 2r माइनस 2 और 1 के प्लेस में तो 1 है ही। सो हम दोनों को लिख देंगे कोएफिशिएंट, क्योंकि जो r की वैल्यू है r माइनस 6 और 2r माइनस 2 1 बाई 1 वहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें 34c r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 34c 2r माइनस 2 हमें मिलेगा। चलो समझ में आ गया इतना। अभी आपके पास एक रूल होगा बराबर ना, इसको मैं रिजल्ट कैपिटल B देता हूँ। ओके आपके पास एक रूल होगा जो आपने कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन चैप्टर में सीखा होगा। सो फर्स्ट केस 1 ओके, सो B इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, 34c r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 34c 2r माइनस 2। अगर आपको ऐसा फॉर्म मिले, मतलब ऊपर जो n का जो प्लेस है उस पर दोनों बाजू मतलब इक्वालिटी होगी और बीच में तो यहाँ पे n होगा और यहाँ पे कोई भी डिफरेंट टर्म होगा, तो ये दोनों को हम इक्वालिटी कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2r माइनस 2 हम कर सकते हैं। सो वी गेट r इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, सो ये r इधर जाएगा और यह इधर आएगा, मतलब यहाँ पे 6 है, सॉरी स्टूडेंट्स। सो क्या मिलेगा हमें, -4 विच इज नॉट पॉसिबल because we know that the value of r can't be negative. So case 2 B implies okay 34c r minus 6 is equals to 34c 2r minus 2. Okay, as I say in a previous lecture that the combination of first term and last term both are same, and obviously the combination of second term and last second term both are same. Okay, सो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेन करता हूँ। सो NC1 सेकंड टर्म एंड NC n माइनस 1 बोथ आर सेम, आंसर इज n। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो दैट इम्प्लाइज 34cr माइनस 6 इज इक्वल्स टू ओके, इसको कंपेयर करो, यहाँ पे n के रिप्लेस में 34 है और 1 के रिप्लेस में 2r माइनस 2 है, तो इसके इक्वल यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, सो 34 माइनस 2r माइनस 2 लिख सकते हैं। देख सकते हैं n के रिप्लेस में तो n 34 है, यहाँ पे n पे 34 है और यहाँ पे 1 पे जो 1 की वैल्यू है 2r माइनस 2 है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, फिर से ये दोनों को कंपेयर करेंगे। सो वी गेट दैट इम्प्लाइज r माइनस 6 इज इक्वल टू 34 माइनस 2r प्लस 2। सो दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3r इज इक्वल टू माइनस 6 यहाँ पे आएगा, 34 प्लस 36 एंड 42। सो दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 14 हमें मिलेगा, विच इज पॉसिबल। समझ में आ गया। सो इस तरह हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो हमने कर दी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक ये भी एक सम है, यहाँ पे सिर्फ हमने रूल अप्लाई किया है, एक बार सॉल्यूशन देख लो। होप स्टूडेंट्स आज हमने जितने सम्स किए उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे लास्ट सिर्फ 5 सम्स रिमेनिंग है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो स्टूडेंट्स समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो लास्ट 5 सम्स है वो कंप्लीट करने के लिए। ओके
जैसे हमारा बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।